Hello, welcome back once again in basic electronics subject. So in the last lecture we have ended the second chapter, that is application of diode, and in that chapter we have ended the topic of clipper and camper circuit. With that topic we have ended the second chapter. Now today we are going to start the next unit, the unit number 3 of this particular subject, that is given in your syllabus, bipolar junction transistor BJT. Now this BJT, bipolar junction transistor, is very important chapter in respect of this particular subject, basic electronic subject. It is going to be continue further also in your further next semester also, next semester study also. And for basic electronics as a electronic part is a very important thing, very important topic to be understood by you. So first we are going to understand what is bipolar junction transistor BJT. So it is given to you, it is described to you. BJT, the device in which current conduction takes place because of both electrons and holes, is called as bipolar junction transistor. Now first we are going to understand why this device is known by the name bipolar junction. What do you mean by bipolar? Means two polarity. Bipolar stands for two polarity. Junction. So in this device, what you are going to observe, what you are going to see a difference as compared to your last topic which you have studied, PN junction diode. In that PN junction diode, you have seen the current conduction is takes place because of the majority charge carrier only. Okay. And in that particular device, you had observed there is only one junction. There is only one junction, one PN junction. Now in this particular device, what you are going to observe, you are going to observe the two junctions of PN. Means this device is constructed with the help of three semiconductor device, and that three semiconductor device constitute how many junctions? Two junctions. So what is the difference you are going to observe in this particular device? The first main difference you are going to observe in this particular device, it is constructed with the help of three types of semiconductor, and with the help of three types of semiconductor, how many junctions you are going to observe? You are going to observe two junctions of PN junction. And the main thing is described over here, the device which conduct current or current conduction take place because of both electrons and holes is known as bipolar, two polarity. So bipolar junction transistor. बात समझ में आ रही, मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ? तो ये डिवाइस में आपको करंट का कंडक्शन जो नजर आएगा वो किस तरीके से नजर आएगा? विद द हेल्प ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स. और इस पर्टिकुलर डिवाइस में और क्या चीज आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी? इस पर्टिकुलर डिवाइस में कितने पीएन जंक्शंस होंगे? दो पीएन जंक्शंस होंगे. तो वो हिसाब से इसका नाम यहाँ पे क्या दिया हुआ है? बीजेटी दिया हुआ है, बाइपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर. दूसरी चीज यहाँ पे क्या काम करता है, नीचे सेकंड पॉइंट में डिस्क्राइब किया हुआ है. इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं? द वर्ड ट्रांजिस्टर इज डिराइव फ्रॉम टू वर्ड्स, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस. तो ये जो आपको जो वर्ड जो है, ये जो आपको वर्ड जो है ट्रांजिस्टर, तो ये ट्रांजिस्टर जो है वो दो वर्ड से डिराइव किया हुआ है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस. तो ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस से बना हुआ है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं. क्या काम होता है इसका? विच मीन्स डेट ट्रांसफर द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंट पार्ट टू हाई रेजिस्टेंट पार्ट. तो ये डिवाइस क्या करेगा? आपका सिग्नल ट्रांसफर करेगा. कहाँ से कहाँ तक? लो रेजिस्टेंस पार्ट से हाई रेजिस्टेंट पार्ट पे. तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं. इट इज एक्चुअली ट्रांसफरिंग योर सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई रेजिस्टेंस पाथ. यानी इनपुट में आपका रेजिस्टेंस कम होगा और आउटपुट में आपका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा. तो वहां से वहां सिग्नल को भेज रहा है, लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ में भेज रहा है. तो इसके लिए उसको क्या बोलते हैं? ट्रांजिस्टर बोलते हैं, जिसका एक्चुअल में दो वर्ड से डिराइव किया हुआ है, ट्रांसफर एंड रेजिस्टेंस. तो आई थिंक अब आपको इसका नेम जो है वो थोड़ा क्लियर होगा, स्पेसिफाई हो गया होगा. वन थिंग इन द मिडल मैं आपको पूछना चाहूंगा, हु इज प्रिंट सोल्यूशन? प्रिंट सोल्यूशन कौन है? सर वो मैंने अपने लैपटॉप से कनेक्ट किया है, तो मेरे डैडी का लैपटॉप है, वो मेरी डैडी की कंपनी का नाम है, इसके लिए वो शो कर रहा था. मैं चेंज करके मोहम्मद साद नाम से ज्वाइन कर रहा हूँ.
ओके वेरी गुड। तो थोड़ा मेरे को डाउट हो जाता है ना कभी कभी, इसलिए अब थोड़ा। इसके लिए मैंने अभी जस्ट नोट किया, इसके लिए मैं वहां हाँ से मेरे को पढ़ूँ। वही अभी दिख भी नहीं रहा था, मैं नाम में चेक कर रहा था वो दिख भी नहीं रहा था, लेकिन मैंने ज्वाइन करने के टाइम उसे ऐड कर दिया, दिख भी नहीं रहा था मुझे। ओके वेरी गुड, चलेगा कोई बात नहीं। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये चीज़ क्लियर हो गई। तो यहाँ पे अपना बीजीटी का हम लोग क्या नाम है, क्यों नाम है, वो हम लोग ने क्लियर किया, और कितने जंक्शन होते हैं वो है। अभी हम लोग कंस्ट्रक्शन में डिटेल में देखेंगे। इन शॉर्ट एक समरी टाइप को इसको ट्रांजिस्टर क्यों कहते हैं, तो ट्रांजिस्टर जो है वो दो वर्ड से डिराइव किया हुआ है, ट्रांसफर और रेजिस्टेंस से, जिसका मीनिंग क्या होता है, इट इज गोइंग टू ट्रांसफरिंग द सिग्नल फ्रॉम लो रेजिस्टेंट पाथ टू हाई रेजिस्टेंट पाथ। टाइप्स ऑफ बीजेटी, कितने टाइप्स के बीजेटी है, आपको एक टाइप बीजेटी का एनपीएन टाइप में नजर आएगा, और दूसरा टाइप जो आपको बीजेटी का नजर आएगा पीएनपी टाइप। तो ये दो मेन क्लासिफिकेशन है आपके बीजेटी के। फर्स्ट बीजेटी इज ऑफ एनपीएन टाइप, सेकंड बीजेटी ऑफ इज ऑफ पीएनपी टाइप। ये एनपीएन क्या होता है, पीएनपी क्या होता है, ये आपको अभी कंस्ट्रक्शन देख के समझ में आएगा। तो कमिंग टू द डिटेल कंस्ट्रक्शन ऑफ एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, तो पहले ही हम लोग सीधा कवर करते हैं, एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर को कवर करते हैं। अब देखो यहाँ पे आपको एनपीएन लिखा हुआ है, तो एनपीएन लिखने से आपको समझ में आ रहा होगा कि कितने टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर यूज हुए हैं ये डिवाइस में, जो मैं आपको बोल रहा था। पीएन जंक्शन डायोड में दो टाइप के सेमीकंडक्टर यूज होते हैं, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो यहाँ पे आपको सेमीकंडक्टर कितने लगते हैं इस डिवाइस में, तीन लगते हैं। कैसा होता है इस पर्टिकुलर डिवाइस में, बीजेटी में, एक टाइप का सेमीकंडक्टर बीच में सैंडविच किया हुआ होता है आजू बाजू दो अलग टाइप के सेमीकंडक्टर से। जैसे कि आपको ये एनपीएन टाइप में बता रहा हूँ, द कंस्ट्रक्शन इज ऑफ एनपीएन टाइप। तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन दिस एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, बीच में मिडल में आपका पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एंड इन द अदर टू साइड व्हाट यू आर हैविंग टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये दो एन टाइप के सेमीकंडक्टर बीच में किसको कवर कर रहे हैं, एक पी टाइप के सेमीकंडक्टर को। तो इसके लिए इसका क्या टाइप का नाम क्या है, एन पी एन। So in this device, in this type of transistor, what you are observing, a single p type semiconductor is sandwich, इसको सैंडविच बोलते हैं ना, सैंडविच तो आपको पता है, सैंडविच में आप देखते होगे बीच में मैटर होता है और ऊपर आजू बाजू ऊपर नीचे क्या होता है, दो आपके ब्रेड के स्लाइस होते हैं। तो वैसे ही इसको भी उसी तरीके से समझाया गया है कि इन अ मिडल there is a p type semiconductor, and on the other two side there is two n type semiconductor which are covering this single p type semiconductor। तो इसलिए ये डिवाइस में आपको पीएन के कितने जंक्शन नजर आएंगे, पीएन के अगर आप एक हिसाब से बोलोगे, ये बीजेटी में कितने डायोड्स नजर आएंगे आपको, तो आपको दो डायोड्स नजर आएंगे, एक ये पीएन जंक्शन डायोड, एक ये पीएन जंक्शन डायोड। ठीक है। तो हाउ मेनी जंक्शंस इज आर देयर इन दिस पर्टिकुलर डिवाइस, तो दिस डिवाइस इज ऑफ हैविंग हाउ मेनी जंक्शंस, टू पीएन जंक्शन। एक फ्रंट में पीएन जंक्शन नजर आ रहा है और एक लास्ट में पीएन जंक्शन नजर आ रहा है। एक एनपी ये भी पीएन जंक्शन है, ये पीएन ये भी पीएन जंक्शन है। तो ये कहना गलत नहीं होगा, इसकी एनोलॉजी, ये डिवाइस की एनोलॉजी मतलब बैक टू बैक दो सेमीकंडक्टर डायोड को कनेक्ट करके, कंबाइन करके आपका जो डिवाइस फॉर्म होता है, वो डिवाइस को बोलते हैं ट्रांजिस्टर बीजीटी। So what is transistor BJT? In short, in a summary, you can describe a BJT is a device which is having two PN junction and it is having three terminals. तो आप ध्यान से ऑब्जर्व करोगे इस पर्टिकुलर डिवाइस में अब कितने टर्मिनल्स आएंगे, ये तीन सेमीकंडक्टर के अपने कनेक्ट करने के लिए तीन टर्मिनल्स। तो पहला जो सेमीकंडक्टर है एन टाइप, वहां से एक टर्मिनल निकला हुआ है, उस टर्मिनल का नाम बोलते हैं इमीटर। दूसरा जो बीच में पी टाइप का सेमीकंडक्टर यूज होता है, वहां से एक टर्मिनल निकाला हुआ है, उस टर्मिनल को बोलते हैं बेस। और लास्ट वाला जो सेमीकंडक्टर यूज हुआ है, वहां से एक टर्मिनल निकलता है, उस टर्मिनल को बोलते हैं कलेक्टर। तीनों का कुछ नाम है, कुछ इसलिए नाम दिया हुआ है, कुछ काम है, इसको हिसाब से नाम दिया हुआ है, वो अभी हम लोग जानेंगे, वो हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे। तो पहले तो मैं आपको कंस्ट्रक्शन के बारे में समझा रहा था। तो पहला जो टाइप है आप बीजेटी का जो देख रहे हो, वो कौन सा टाइप देख रहे हो, एनपीएन टाइप। तो व्हाट यू आर गोइंग टू ऑब्जर्व इन एनपीएन टाइप, in this NPN type, one single p-type semiconductor is sandwiched between two n-type semiconductors, and this particular device is having how many p-n junctions, it is having two p-n junction, and this device is having how many terminals, it is having three terminals, emitter, base and collector. So first type of semiconductor, first semiconductor type से जो टर्मिनल निकलता है वो इमीटर, सेकंड से जो निकलता है बेस, थर्ड से जो निकलता है कलेक्टर। तो अब थोड़ा डिटेल में जरा इसका जो सेंटेंस जो लिखा हुआ है उसको जरा अच्छे से समझते हैं, क्या क्या कंस्ट्रक्शन में दिया हुआ है, इसका कैसे वर्किंग होने वाला है। इन एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर द पी टाइप सेमीकंडक्टर इज सैंडविच बिटवीन
टू एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो ये पहला पॉइंट तो आपको क्लियर था। एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर में क्या होने वाला है, पी टाइप का सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में, मतलब दो एन टाइप सेमीकंडक्टर के बीच में वो सैंडविच किया हुआ होगा। ठीक है, वो हो गया। सेकेंड, एट इमीटर टर्मिनल, जो इमीटर वाला टर्मिनल है, जो फ्रंट वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है, द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर इज मीडियम एंड इट इज हैवीली डोप इन ऑर्डर टू इमिट इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। अब ये जरा आप मीनिंग जरा अच्छे से समझो। तो ये जो पहला वाला जो आपको एन टाइप का सेमीकंडक्टर जो नजर आ रहा है, देखो मैंने यहाँ पे ना इनकी साइज में भी फर्क बनाया हूँ। अगर आप प्रॉपरली ऑब्जर्व करोगे तो मैंने ऐसे ही नहीं बना दिया कि ये बॉक्स में ये साइज ऐसा, ये साइज ऐसा, ये साइज ऐसा, उसका कुछ मीनिंग है, वो हिसाब से बनाया हुआ है। तो जो फ्रंट वाला पहला वाला जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, उसकी साइज क्या होती है, मीडियम होती है, और वो हैवीली डोप किया होता है। व्हाट डू मीन बाय हैवीली डोप? व्हाट डू मीन बाय हैवीली डोप? हैवीली डोप का मतलब क्या होता है, कौन बताएगा? जिसमें बहुत सारा मिक्सचर डाला हुआ है अलग केमिकल। हाँ, बहुत सारा मिक्सचर, वो भी किसका, इम्प्योरिटी का। हमेशा याद रखो, इम्प्योरिटी एडेड इज मोर। हैवीली डोप मतलब क्या, द इम्प्योरिटी एडेड इज मोर। तो इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड किया हुआ है। तो वो इम्प्योरिटी ज़्यादा ऐड करने से क्या होगा, आपको ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स नजर आएंगे। इफ द इम्प्योरिटी एडेड इज मोर, तो मोर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल इज गोइंग टू ऑब्जर्व इन दैट पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर। तो ये जो फ्रंट वाला एन टाइप सेमीकंडक्टर है, इसकी साइज मीडियम होती है और ये सबसे ज्यादा डोप किया हुआ रहता है तीनों में से। तो हैवीली डोप होने की वजह से यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स ज्यादा होंगे, इमिट ज्यादा होंगे। एंड द इमीटर टू बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस। और जैसे कि मैं बता रहा था आपको कि इस पर्टिकुलर डिवाइस का मतलब क्या है, द वर्ड ट्रांजिस्टर इज डिराइव फ्रॉम ट्रांसफर एंड रजिस्टर, जिसका मीनिंग क्या है, ये ट्रांसफर करता है अपने सिग्नल को कहाँ से कहाँ, लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो लो रेजिस्टेंस पाथ टू हाई रेजिस्टेंस पाथ मतलब हमेशा ये जो इनपुट साइड का जो जंक्शन है, इनपुट साइड का जो जंक्शन है, ये जो इनपुट साइड का पीएन जंक्शन है, ये हमेशा आपका फॉरवर्ड बाइज होना चाहिए। तो फॉरवर्ड बाइज होगा तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। रेजिस्टेंस ज्यादा कौन से केस में होता है, जो केस पीएन जंक्शन डायोड रिवर्स बाइस होता है। रिवर्स बाइस में क्या होता है, करंट कंडक्शन नहीं होता, मतलब रेजिस्टेंस वहां पे ज्यादा है, और जहाँ पे कंडक्शन होता है वहां पे रेजिस्टेंस कम होता है। तो ये डिवाइस क्या करता है, आपके सिग्नल को ट्रांसफर करता है कहाँ से कहाँ, लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ। तो लो रेजिस्टेंस पाथ का मतलब क्या होना चाहिए, ये हमेशा जंक्शन क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, यानी कंडक्शन मोड में रहना चाहिए। और यहाँ पे हाई रेजिस्टेंस पाथ मतलब क्या, ये वाला जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस होना चाहिए। रिवर्स बाइस रहेगा तभी रेजिस्टेंस इसका क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। प्लीज म्यूट, कौन है ये, रोल नंबर 20? यस, थैंक यू। तो ये क्या हो गया आपका, ये इधर पे हमेशा जो आपका जो डिवाइस है वो इनपुट जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। तो इसलिए यहाँ पे वही लिखा हुआ है, एंड द इमीटर टू बेस जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस। कोई कुछ पूछ रहा है क्या, किसी को कुछ डाउट है? तो इमीटर टू बेस जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए आपका, फॉरवर्ड बाइस। और ये जो आपका आखिरी जो वाला जंक्शन है, जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन, वो कैसा किया हुआ रहेगा, रिवर्स बाइस। तो पहले तो ये बात क्लियर हो गई कि ये जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है उसकी साइज क्या है, मीडियम, और वो कैसा डोप किया हुआ रहता है, हैवीली डोप किया हुआ रहता है। और जो इनपुट का जो जंक्शन दिख रहा है, जो आप जंक्शन बोलोगे, ये जंक्शन जो है ना, पीएन जंक्शन, ये क्या क्या कंस्टिट्यूट करता है, कौन सा टर्मिनल, इमीटर एंड बेस टर्मिनल। तो ये जंक्शन के बीच में जो जंक्शन इसकी बाइजिंग होना चाहिए, वो कौन सी बाइजिंग होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस किया होना चाहिए। तो लो रेजिस्टेंस कब होगा, जब ये फॉरवर्ड बाइस होगा। सेकंड, आपको जो दूसरा जो टाइप का सेमीकंडक्टर है बीच में जो दिया हुआ है, एट बेस टर्मिनल द साइज ऑफ सेमीकंडक्टर इज वेरी थिन एंड इट इज लाइटली डोप। तो बीच का जो सेमीकंडक्टर है, पी टाइप सेमीकंडक्टर, जिसकी साइज सबसे कम होती है, बहुत थिन होता है और बहुत ही लाइटली डोप किया हुआ रहता है। बहुत ही लाइटली डोप किया हुआ रहता है मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स बहुत कम होंगे। बहुत लाइटली डोप किया हुआ है तो एकदम नेग्लिजिबल, बहुत कम के बराबर आपके इधर पे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल होंगे, और इसकी साइज भी बहुत कम होती है। तो यह जो आपको बीच का पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, एज कंपेयर टू बोथ द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, द साइज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर इज वेरी वेरी थिन एंड इट इज आल्सो वेरी लाइटली डोप। So no very less number of electrons and hole will be there in this semiconductor. Coming to the next point, अब last point पे आते हैं। At collector terminal, the size of semiconductor is very large. सबसे बड़ा साइज जो है वो आपका ये लास्ट टाइप का सेमीकंडक्टर है। जो कलेक्टर साइड की तरफ जो सेमीकंडक्टर है उसकी साइज सबसे ज्यादा बड़ी होती है।
क्यों बड़ी होती है उसका रीजन यहाँ पे दिया हुआ है, इन ऑर्डर टू कलेक्ट द ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि सबसे ज्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे आने वाले हैं तो कलेक्ट करने के लिए, इसलिए उसका टर्मिनल का नाम होता है कलेक्टर। ये पर्टिकुलर टर्मिनल का नाम इमीटर इसलिए क्योंकि ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर से आपके इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे, तो ये सेमीकंडक्टर से आपके इलेक्ट्रॉन इमिट होने वाले, तो इसलिए इस टर्मिनल का नाम दिया हुआ इमीटर। और ये पर्टिकुलर सेमीकंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कलेक्ट होने वाले, गैदर होने वाले, जमा होने वाले, तो इसके लिए इस टर्मिनल का नाम दिया हुआ है कलेक्टर। और आपका बीच में जो है वो टाइप का सेमीकंडक्टर का जो टर्मिनल वो क्या है, बेस। तो इट इज जस्ट गिविंग द बेस ओनली, दोनों के आजू बाजू टर्मिनल का ये बेस बनता है जहाँ से आप दोनों भी जंक्शन को ज्वाइन करते हो, तो डेट्स वाई ये टर्मिनल का नाम क्या दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है। तो ये नाम भी आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये सब टर्मिनल्स का नाम क्यों दिया हुआ है। तो बात चल रही थी लास्ट वाला सेमीकंडक्टर में ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गैदर होने वाले हैं, और उसका जो डोपिंग होता है वो कैसा होता है, मॉडरेटली डोप। तो कलेक्टर टू बेस जंक्शन में क्या होना चाहिए, आपके लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गैदर होना चाहिए, और इसकी जो डोपिंग होगी वो मॉडरेटली डोप होगी, और ये जंक्शन हमेशा आपका क्या होगा, रिवर्स बाइस होगा, कलेक्टर टू बेस जंक्शन। सो कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट, रिवर्स बाइस। क्यों रिवर्स बाइस, हाई रेजिस्टेंस पाथ कब बनेगा, जब आप इसको रिवर्स बाइस करोगे। यहाँ पे लो रेजिस्टेंस पाथ कब बनेगा, जब आप इसको फॉरवर्ड बाइस करोगे। तो इमीटर टू बेस जंक्शन इज ऑलवेज फॉरवर्ड बाइस एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज ऑलवेज रिवर्स बाइस। तो ये सब चीज़ जो मैंने आपको समझाया, ये कंस्ट्रक्शन के पर्सपेक्टिव से बताया हूँ, समझाया हूँ मैंने आपको। तो हम लोग की बात चल रही है, ट्रांजिस्टर की बात चल रही है। तो ट्रांजिस्टर, पहली बात तो क्या है, व्हाट इज ट्रांजिस्टर, व्हाट इज बीजेटी। आपसे पूछा जाए व्हाट इज बीजेटी, तो आपको बताना है बीजेटी सर, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर is a device which is having how many junctions, two junctions, and it is having how many terminals, three terminals, and what purpose it is used, उसका पर्पस क्या है, it is used for transferring the signal from low resistance path to high resistance path, जो लो रेजिस्टेंस पाथ से हाई रेजिस्टेंस पाथ में सिग्नल को ट्रांसफर करता है, इसलिए उसको बोलते हैं। और दूसरी बात बीजेटी क्यों बोलते हैं, बिकॉज इस कंस्टिट्यूट करंट बिकॉज ऑफ बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स, दैट्स वाई उसको बायपोलर बोलते हैं, टू पोलैरिटी। तो दोनों भी वजह से यहाँ पे करंट का कंडक्शन होता है, दैट्स वाई उसको क्या बोलते हैं, बायपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर। आई होप आप लोगों को कंस्ट्रक्शन का ये थोड़ा क्लियर हुआ होगा एनपीएन का। तो उसी तरीके से दूसरा जो कंस्ट्रक्शन जो बनेगा वो कौन सा रहेगा, पीएनपी। तो पीएनपी में अभी आपको क्या समझ में आ रहा है, पीएनपी में अभी आपको सब चीज़ वैसी रहेगी, खाली क्या हो गया, बीच में अभी आपका क्या रहेगा, एन टाइप का सेमीकंडक्टर, और आजू बाजू क्या रहेगा आपका, कौन सा रहेगा, दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर। वेरी गुड। तो यहाँ पे मिडल में एन टाइप का सेमीकंडक्टर, आजू बाजू दो पी टाइप के सेमीकंडक्टर। तो पहला वाला जो पी टाइप का सेमीकंडक्टर से जो टर्मिनल रहेगा वो क्या रहेगा, आपका मीटर। यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कलेक्टर। यहाँ पे बीच में क्या रहेगा, आपका बेस। ओके, सो दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, ये कैसा डोपिंग क्या हो रहेगा, सबसे ज्यादा हैवीली डोप, और इसकी साइज क्या होगी, मीडियम। तो हैवीली डोप एंड साइज इज ऑल्सो मीडियम। बीच में जो एन टाइप का सेमीकंडक्टर है वो सबसे थिन होगा साइज में, और एकदम लाइटली डोप किया हुआ रहेगा, वेरी लेस, तो लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स रहेंगे। और लास्ट वाला जो आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर है वो सबसे ज्यादा साइज में होगा और मॉडरेटली डोप किया हुआ होगा, इन ऑर्डर टू कलेक्ट ह्यूज नंबर ऑफ व्हाट। अब यहाँ पे सबसे ज्यादा क्या ह्यूज नंबर ऑफ क्या कलेक्ट होने वाला है, होल्स कलेक्ट होने वाला है। तो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर से होल्स इमिट होंगे, लास्ट वाले पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स गैदर होंगे, इकट्ठा होंगे, कलेक्ट होंगे। और याद रखो हमेशा इमीटर टू बेस जंक्शन क्या करना होता है, फॉरवर्ड बाइस, एंड कलेक्टर टू बेस जंक्शन हमेशा क्या करना होता है, रिवर्स बाइस। तो दो जंक्शन आपको नजर आ रहे हैं, एक ये जंक्शन है आपका पीएन और एक ये जंक्शन है आपका पीएन। तो ये जो पीएन जंक्शन है वो हमेशा फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, और जो आउटपुट वाला जंक्शन है वो हमेशा क्या होना चाहिए, रिवर्स बाइस। तो इनपुट जंक्शन मस्ट बी फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट जंक्शन must be reverse bias. So in P-NP type transistor, the N-type semiconductor is sandwiched between two P-type semiconductor. सेम पूरा वर्किंग वैसा ही जैसा था वो समझाया हुआ था कंस्ट्रक्शन में, तो आप उसको कंटिन्यू कर सकते हो। जो मैंने ये पॉइंट्स लिखाया था वो पॉइंट्स को देख के आप इसका कंस्ट्रक्शन भी कंटिन्यू कर सकते हो, खाली कुछ डिफरेंस नहीं रहेगा उसके अंदर। इसकी साइज मीडियम, हैवीली डोप, इसकी साइज सबसे थिन, लाइटली डोप, इसकी साइज सबसे ज़्यादा, मॉडरेटली डोप। तो ये सारी चीज़ पॉइंट जो है आप समझा सकते हो, एक्सप्लेनेशन दे सकते हो। तो ये हम लोग ने अभी तक क्या देखे, ये अभी तक हम लोग ने दोनों का कंस्ट्रक्शन देखे, एनपीएन टाइप का और पीएनपी टाइप का। अब मैं आ जाता हूँ
मेन चीज़ पे आ जाता हूँ, जो आपने कंस्ट्रक्शन देखे उसकी वर्किंग। तो मैं आ जाता हूँ मेन टॉपिक, दैट इज वर्किंग ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर। अब ये ट्रांजिस्टर में किस तरीके से वर्क होता है, आपने डायोड का तो वर्किंग पढ़ चुके हो। डायोड का क्या वर्किंग पढ़े हो, जब आप उसको फॉरवर्ड बायस करोगे तो करंट कंडक्ट होगा, रिवर्स बायस करोगे तो करंट कंडक्ट नहीं होगा। तो ये भी बिल्कुल ट्रांजिस्टर भी जो है वो तो डायोड से ही बना हुआ है। अब यहाँ पे बस ये हो गया है कि एक जंक्शन के बदले में कितने जंक्शन है, दो जंक्शन है। तो अब इसमें कैसे वर्किंग होता है, कैसे बाइजिंग होता है, ये थोड़ा डिटेल में अब हम लोग को जानना है, अंडरस्टैंड करना है। तो कमिंग टू द वर्किंग ऑफ एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर, तो लेट अस सी द वर्किंग ऑफ दिस एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। तो इस एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर की जरा वर्किंग को अंडरस्टैंड करते हैं। जैसा कि आपको सबको पता है, पहला फ्रेंड में कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर की साइज क्या होती है, मीडियम, और सबसे ज़्यादा डोप किया हुआ रहता है। तो डोपिंग ज़्यादा किया होने की वजह से क्या होगा, ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, और ये ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिर इमिट होंगे। यहाँ से इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा इमिट होंगे, और इमिट होके कहाँ पे जाएंगे, किस तरफ मुड़ेंगे, किस तरफ जाएंगे, ये जाहिर सी बात है पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर जो है उसकी साइज क्या है, आपकी सबसे कम है, थिन इन साइज, और इसकी डोपिंग भी बहुत ही हल्की होती है, लाइटली डोप। तो यहाँ पे लाइटली डोप होने की वजह से नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स भी क्या होंगे, बहुत कम होंगे। तो जो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये फ्रंट से इमीटर के सेक्शन से निकल रहे हैं, दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर से निकल रहे हैं, वो ये पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएंगे। लेकिन यहाँ पे रिकॉम्बिनेशन इतना ज़्यादा नहीं होने वाला है। क्यों नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर में उतने ज़्यादा नंबर ऑफ होल्स है ही नहीं। तो उतने ज़्यादा होल्स नहीं है, तो फिर बाकी के इलेक्ट्रॉन्स क्या होंगे, फिर यहाँ से तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में हैविली डोप होने की वजह से नहीं कर रहे हैं। बट दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर, इन दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर द नंबर ऑफ होल्स आर वेरी लेस, तो द रिकॉम्बिनेशन इज गोइंग टू बी वेरी लेस। तो फिर बाकी के सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, तो बाकी के सब इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे मुड़ेंगे, इन द लास्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो इस पर्टिकुलर एन टाइप सेमीकंडक्टर में ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो गैदर होंगे। तो यहाँ पर रिकॉम्बिनेशन होगा ओनली 2% ऑफ दिस कमिंग इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं उनका 2% सिर्फ रिकॉम्बिनेशन होगा, बाकी के सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके कहाँ पे मुड़ने वाले, यहाँ पे एन टाइप सेमीकंडक्टर, लास्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर में, और यहाँ पे जाके आपके इकट्ठा होने वाले, गैदर होने वाले। अब आते हैं हम लोग जो मैं आपको बाइजिंग की बात बता रहा था। तो बाइजिंग में हमेशा मैंने आपको क्या बताया, दिस पर्टिकुलर इमीटर टू बेस जंक्शन मस्ट भी क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। इमीटर टू बेस जंक्शन हमेशा क्या होना चाहिए, फॉरवर्ड बाइस। तो फॉरवर्ड बाइस होने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये आपका इमीटर टर्मिनल है, ये बेस टर्मिनल है, इनके बीच में बैटरी को कनेक्ट करना पड़ेगा। अब इस बैटरी का पोलैरिटी देखो, अगर फॉरवर्ड बाइस की बात चल रही है, ये जंक्शन फॉरवर्ड बाइस होना चाहिए, तो ये कौन सा टाइप का सेमीकंडक्टर है, एन टाइप। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर को फॉरवर्ड बाइस देने के लिए आपको किधर पे कनेक्ट करना पड़ेगा, विच टर्मिनल ऑफ द बैटरी, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। और ये बेस का कौन सा है आपका टाइप का सेमीकंडक्टर, पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो पी टाइप सेमीकंडक्टर को क्या देना पड़ेगा आपको, पॉजिटिव। तो अभी तो पॉजिटिव आप, टर्मिनल। वेरी गुड। तो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ कनेक्ट होता है, नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी एन टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ कनेक्ट होता है। तो अगर आपको इमीटर टू बेस जंक्शन को फॉरवर्ड बायस करना है, तो बैटरी की पोलैरिटी इस तरीके से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। और इस बैटरी का जो नाम दिया हुआ है वो आपको क्या दिया हुआ है, VEE। सो दिस VEE स्टैंड फॉर, ये बैटरी का नेम है जो इमीटर टर्मिनल पे कनेक्ट किया हुआ है, तो इस बैटरी का नाम दिया हुआ है VEE। तो ये VEE इसलिए दिया हुआ है क्योंकि बैटरी ज्यादा यूज हो रही ना, अब एक बैटरी तो यूज नहीं हो रही, दूसरी बैटरी भी यूज हो रही है, तो उसका कुछ नाम देना पड़ेगा ताकि डिफरेंस पता चले। तो इस बैटरी का नाम जो दिया हुआ है जो इमीटर टर्मिनल पे कनेक्ट होता है उसको बोलते हैं VEE। और इसी तरीके से जो कलेक्टर टर्मिनल पे बैटरी कनेक्ट होती है उसको बैटरी को बोलते हैं VCC। तो ये बात क्लियर हो गई आप लोग को। तो ये बैटरी यहाँ पे कौन सा कनेक्शन कैसा किया हुआ है, बिकॉज ऑफ दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर नेगेटिव टर्मिनल, बिकॉज ऑफ दिस पी टाइप सेमीकंडक्टर पॉजिटिव टर्मिनल, इन ऑर्डर टू फॉरवर्ड बाइस इमीटर टू बेस जंक्शन। अब उसी तरीके से आपका जो दूसरा जंक्शन है कलेक्टर टू बेस जंक्शन, उसको रिवर्स बाइस करना है। तो उसको रिवर्स बाइस करने के लिए वो हिसाब से बैटरी की पोलैरिटी कनेक्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे कलेक्टर में आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर है, तो कलेक्टर में जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है उसको बैटरी कौन से टर्मिनल पे कनेक्ट करना पड़ेगा, पॉजिटिव। सिमिलरली ये जो पी टाइप सेमीकंडक्टर उसको कनेक्ट करना पड़ेगा कहाँ पे, नेगेटिव, इन ऑर्डर टू रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस करने के लिए ये एन टाइप सेमीकंडक्टर आप कनेक्ट करोगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, ये पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप कनेक्ट करोगे इधर पे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। तो इस तरीके से ये जो कलेक्टर टू बेस जंक्शन है ये बन जाएगा आपका रिवर्स बाइस, ये इमीटर टू बेस जंक्शन आपका क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड बाइस। तो इमीटर टू बेस जंक्शन इज फॉरवर्ड बाइस, कलेक्टर टू बेस जंक्शन इज रिवर्स बाइस। तो आप देखो जरा वर्किंग आप समझो जरा,
ये वर्किंग क्या हो रही है बैटरी को लगा के, जाहिर सी बात है ये नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी है और ये एन टाइप सेमीकंडक्टर में ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो नेगेटिवली चार्ज विल रिपेल ईच अदर। तो यहाँ से क्या होगा, बिकॉज ऑफ दिस नेगेटिव टर्म ऑफ बैटरी फोर्स मिलेगा, या आपके इलेक्ट्रॉन्स को फोर्स मिलेगा और ये मूव होंगे। ये कहाँ पे मूव होंगे, आगे की तरफ मूव होंगे, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ मूव होंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया पी टाइप सेमीकंडक्टर में सबसे लाइटली डोप किया होता है, तो वहाँ पे नंबर ऑफ होल्स एंड इलेक्ट्रॉन्स बहुत कम होंगे। तो जो ह्यूज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जा रहे हैं, तो बहुत कम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सिर्फ होल से रिकम्बाइन करेंगे, बाकी के इलेक्ट्रॉन्स कहाँ पे जाएंगे, किधर पे गैदर होंगे, ये लास्ट वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर में। और इन दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर ऑलरेडी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स है और यहाँ से आपके बहुत सारे इमिट होके इधर पे आ रहे हैं। यानी मैंने आपको जो बताया 98% आपके इलेक्ट्रॉन्स ये लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन्स में गैदर होंगे, सिर्फ 2% यहाँ पे पी टाइप सेमीकंडक्टर में रिकम्बाइन करेंगे बस। तो लाइटली डोप होने की वजह से ओनली 2% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन विल रिकम्बाइन एंड रिमेनिंग 98% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन इज गोइंग टू बी गैदर एंड गैदर टुवर्ड दिस लास्ट एन टाइप सेमीकंडक्टर। और यहाँ पे इकट्ठा होके ये नेगेटिवली चार्ज, जाहिर सी बात है बैटरी को किससे अट्रैक्ट करेंगे, ये बैटरी का यहाँ पे क्या है पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी, तो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाएंगे। तो कहने का मतलब मैं पूरा ये सब जो आपको समझाया, ये किस लिए समझाया, ये पूरा जो वर्किंग है इसका इस तरीके से कि जो इलेक्ट्रॉन का जो फ्लो हो रहा है ना वो किस डायरेक्शन में हो रहा है, कैसा हो रहा है, वो जरा ऑब्जर्व करो। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर से यहाँ से इलेक्ट्रॉन फ्लो हुए पी टाइप सेमीकंडक्टर में, थोड़े बहुत यहाँ से पी टाइप सेमीकंडक्टर से रिकम्बाइंड होके इस डायरेक्शन में जाएंगे, नीचे की तरफ जाएंगे, बेस की तरफ जाएंगे, और बाकी के सब आगे की तरफ जाएंगे और ये आगे की तरफ जाके इस तरीके से ये पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी पे इकट्ठा होंगे। तो ये यहाँ पे मूवमेंट हो रहा है, यहाँ पे आपके इलेक्ट्रॉन्स का क्या हो रहा है, मूवमेंट हो रहा है। दिस एन टाइप पी टाइप एन टाइप पूरा मूवमेंट हो रहा है, पूरा प्रोसीजर चल रहा है। तो जब भी आपका इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है, तो जो डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में किसका मूवमेंट होता है, उसके अपोजिट डायरेक्शन, नहीं नहीं नहीं, होल्स तो ठीक है। द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नथिंग बट कंस्टिट्यूटिंग व्हाट, वो कंस्टिट्यूट क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो क्या कंस्टिट्यूट करता है, करंट ना, करंट। करंट करंट हम लोग ने डायोड में भी तो पढ़ चुके हैं। यस सर, करंट। तो अब जो डायरेक्शन में आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है तो उसी के अपोजिट डायरेक्शन में आपको करंट नजर आएगा। तो जो इमीटर टर्मिनल से करंट कंस्टिट्यूट होगा इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो इसका एरो मार्क देखो आप लोग, दिख रहा है आपको। तो एमीटर टर्मिनल से जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है उस करंट का नाम दिया हुआ है ई आई ई, ठीक है, आई ई। तो दिस आई स्टैंड फॉर इमीटर करंट। तो ये इमीटर टर्मिनल से जो करंट कंस्टिट्यूट हो रहा है उस करंट का नाम है आई ई। और ये जो बेस से आपका जो करंट कंस्टिट्यूट होगा जो अंदर की तरफ जा रहा है, क्योंकि फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इस तरफ है, बेस से बेस टर्मिनल से बाहर जा रहा है, तो इसका जो करंट का जो डायरेक्शन होगा वो इनसाइड जाएगा, बेस के इनसाइड जाएगा। तो दिस आई बी स्टैंड फॉर बेस करंट। हालांकि बहुत कम करंट होने वाला है ये, क्योंकि लेस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स विल रिकम्बाइन, तो करंट का जो इधर पे जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है बहुत कम होगा। फिर भी जो करंट फ्लो हो रहा है, जो इलेक्ट्रॉन्स फ्लो हो रहा है उसका जो करंट कंस्टिट्यूट होगा, तो उस कंस्टिट्यूट ऑफ करंट को क्या बोला जाएगा, आई बी। अब ये वाला लास्ट वाला देखो, लास्ट वाला टर्मिनल जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ये डायरेक्शन में है, तो जाहिर सी बात है उसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट का होगा। तो इनसाइड द कलेक्टर टर्मिनल जो करंट फ्लो हो रहा है उस करंट फ्लो का नाम क्या है, आई सी। क्योंकि बैटरी का पोलैरिटी देख के भी आपको समझ में आना चाहिए किस तरीके से करंट फ्लो होता है। तो करंट जो फ्लो होगा यहाँ से फ्लो होगा, तो इस करंट फ्लो को क्या बोलेंगे, आई सी। यहाँ से जो करंट फ्लो हो रहा है वो आई, और इनसाइड बेस टर्मिनल जो जा रहा है आई बी। बोलिए बोलिए, पूछिए, किसी को कुछ क्वेश्चन पूछना है पूछिए। सर अगर आईबी नहीं, मतलब अगर मैंने कनेक्शन तोड़ दिया तो आईसी से आईई तक जाएगा क्या? आईसी से आई तक जाएगा ही नहीं। अगर आपने आईबी का कनेक्शन ही तोड़ दिया तो पहली बात तो वो जंक्शन फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस होगा ही नहीं। दैट्स व्हाई उसको बेस बोलते हैं ना। इट रिक्वायर्स मिडल, मिडल का रिक्वायर जरूरी है, तभी तो आप वो जंक्शन कंप्लीट होगा फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। अगर आपने बेस टर्मिनल को हटा ही दिए, रखे ही नहीं, तो हाउ यू आर एबल टू डू द फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग ऑफ दिस जंक्शन, कैसे आप फॉरवर्ड बाइजिंग रिवर्स बाइजिंग करोगे। इन ऑर्डर टू डू दैट फॉरवर्ड बाइजिंग, ये पूरा जंक्शन कंप्लीट हो रहा है ना मिला के, ये इमीटर टू बेस मिला के ये जंक्शन कंप्लीट हो रहा है, ये पीएन जंक्शन कंप्लीट हो रहा है। इसी तरीके से ये कलेक्टर टू बेस मिला के कंबाइन करके ये जंक्शन कंप्लीट हो रहा है।
तो बीच में इसलिए उसको बेस बोला जाता है, इट इज सपोर्टिंग द बेस इन ऑर्डर टू डूइंग द फॉरवर्ड बाइजिंग एंड रिवर्स बाइजिंग। तो ये जो है सर आईबी किस तरफ जा रहा है करंट? आईबी करंट किस तरफ जा रहा है? इनसाइड द बेस टर्मिनल, इनसाइड द बेस तो टर्मिनल मिडिल द में। करंट इज फ्लोइंग आईबी। हाँ, मिडल के इनसाइड जा रहा है, या इनसाइड अंदर की तरफ दिखता है ना, बेस टर्मिनल के अंदर की तरफ दिख रहा है, या इमीटर की बाहर की तरफ जो करंट फ्लो हो रहा है उसको बोलते हैं आई। इसका जो फ्लो ऑफ करंट जो है इन अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा। मैंने आपको यहाँ पे एरो मार्क में दिखा दिया, ये इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो है। तो यहाँ का इलेक्ट्रॉन का फ्लो इस तरीके से जा रहा है, यानी इमीटर टर्मिनल से अवे हो रहा है, इमीटर के अंदर है अपना इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है, तो उसके अवे में करंट फ्लो होगा। तो इसलिए आपको करंट का जो फ्लो है वो अवे तरफ दिख रहा है, इमीटर से बाहर के टर्मिनल की तरफ दिख रहा है। अब यहाँ पे बेस में आपका जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो आपका बेस के बाहर जा रहा है, तो करंट जो होगा वो इनसाइड होगा, आई बी इनसाइड। तो बेस करंट के इनसाइड करंट फ्लो होता हुआ दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे जो लास्ट में आपका जो कलेक्टर टर्मिनल है, उसका कलेक्टर टर्मिनल से बाहर आपका फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो कलेक्टर का जो करंट होगा कहाँ पे होगा, इनसाइड द कलेक्टर टर्मिनल। तो कलेक्टर के इनसाइड में आपका करंट फ्लो हो रहा है आईसी, बेस के इनसाइड आपका करंट फ्लो हो रहा है आईबी, और यहाँ इमीटर से अवे जा रहा है उसका करंट फ्लो हो रहा है आईई। तो पूरा होल जब एक्सप्रेशन आप देखोगे तो ये पूरा होल एक्सप्रेशन आपको क्या नजर आएगा, मेन तो आपका ये इमीटर करंट ही है। ये इमीटर करंट जो है ना वो बट रहा है, दो चीज में बट रहा है। अगर आप पूरा अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड करोगे, ऑब्जर्व करोगे, तो यहाँ एन टाइप सेमीकंडक्टर से ही ज्यादा पूरे इलेक्ट्रॉन्स इमिट होते हैं, और वो बट रहे दो सेक्शन में, एक आपका कलेक्टर में और एक आपका बेस में। तो अगर आप पूरा एक्सप्रेशन देखोगे तो इमीटर करंट इज नथिंग बट द सम ऑफ कलेक्टर करंट एंड बेस करंट। emitter current is the sum of collector current and base current। बट जैसा कि मैंने आपको बताया कि बेस करंट एकदम नेग्लिजिबल होगा, ना के बराबर होगा। ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रिकम्बाइंड विद दिस होल्स एंड कंस्टिट्यूट बेस करंट। तो वो नेग्लिजिबल होने के बराबर होने के हिसाब से हम डायरेक्टली क्या बोलते थे, इमीटर करंट इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू कलेक्टर करंट। तो जो इमीटर करंट यहाँ पे कंस्टिट्यूट हो रहा है वो पूरा सेम बराबर किसके बराबर होगा, कलेक्टर करंट के बराबर होगा। हालांकि नॉर्मली आप पूरा एक्सप्रेशन जो लिखोगे वो आई ई इज इक्वल्स टू आई बी प्लस आई सी, बट आई बी इज वेरी वेरी स्मॉल, तो दैट्स वाई आई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू आई सी। अब दोनों का रेंज दिया हुआ है, आई बी किस में होगा और आई सी किस में होगा। तो आई बी बहुत कम होगा, तो उसका वैल्यू जो रेंज है ना वो किस में दिया हुआ है, देखो माइक्रो एम्पियर में, माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है। और आई एंड आई सी उसका वैल्यू, उसका रेंज देखो किस में दिया हुआ है, मिली एम्पियर में। तो आई भी बहुत नेग्लिजिबल है, इसके लिए उसका रेंज इन माइक्रो एम्पियर में दिया हुआ है, एंड आई इन आई सी किस में दिया हुआ है, मिली एम्पियर में दिया हुआ है। ठीक है, बात समझ में आ रही है आप लोगों को, क्लियर है क्या बोल रहा हूँ मैं? Yes, sir. यस सर। Yes, ठीक है, sir. तो अभी आप इसका जब वर्किंग देख लोगे ना तो आपको पूरा चीज क्लियर हो जाएगा, समझ में आएगा। जो मैंने वर्किंग यहाँ पे लिखा है, इसका वर्किंग में देखो पॉइंट वाइज मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एज द इमीटर टू बेस जंक्शन इज फॉर्म्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन टाइप सेमीकंडक्टर विल फ्लो टुवर्ड्स पी टाइप सेमीकंडक्टर एंड कंस्टिट्यूट इमीटर करंट आई। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होना चाहिए, तो इमीटर टू बेस जंक्शन फॉरवर्ड बायस होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम दिस एन टाइप सेमीकंडक्टर, क्योंकि ये नेगेटिवली चार्ज बैटरी और ये इलेक्ट्रॉन्स का नेगेटिव दोनों क्या होगा, रिपेल होगा। रिपेल होकर कहाँ पे जाएगा, फिर ये आगे की तरफ जाएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर की तरफ जाएगा। तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो कैसा होगा, ये एन टाइप सेमीकंडक्टर से पी टाइप। तो करंट का फ्लो कहाँ पे होगा, इमीटर करंट कहाँ पे फ्लो होगा, उसके अपोजिट डायरेक्शन में। तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में क्या कंस्टिट्यूट हो रहा है, इमीटर करंट हो रहा है। तो वो चीज़ यहाँ पे पहले पॉइंट में एक्सप्लेन किया हुआ है। इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम एन टाइप टू पी टाइप, तो इन दिस वे इट विल कंस्टिट्यूट इमीटर करंट। तो इमीटर करंट आपका कंस्टिट्यूट होगा जो उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको नजर आएगा। फिर इसके बाद दूसरा पॉइंट में ये दिया हुआ है, सिंस द पी टाइप इज लाइटली डोप, तो ये जो बीच का जो पी टाइप है वो लाइटली डोप है, तो नंबर ऑफ होल्स विल बी लेस। तो उसमें नंबर ऑफ होल्स क्या होंगे, बहुत कम होंगे, टू रिकम्बाइंड विद इलेक्ट्रॉन्स। सो ओनली 2%, तो यहाँ पे दिया हुआ है ओनली 2% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल रिकम्बाइंड एंड कम आउट टुवर्ड्स द बेस एंड कंस्टिट्यूट बेस करंट। तो ओनली 2% ऑफ दिस इलेक्ट्रॉन्स विल कंबाइन विद द होल्स एंड रिकम्बाइंड एंड विल कम आउट फ्रॉम द बेस, और ये बेस से बाहर आएंगे और क्या कंस्टिट्यूट करेंगे, बेस करंट कंस्टिट्यूट करेंगे। लास्ट में क्या दिया हुआ है, रिमेनिंग 98% ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विल इंजेक्ट टुवर्ड एन टाइप सेमीकंडक्टर। तो बाकी के जो 98% है वो कहाँ पे मूव करेंगे, ये लास्ट वाले एन टाइप सेमीकंडक्टर में, इसलिए इसकी साइज भी बढ़ाई हुई है।
बढ़ी है तीनों में, ताकि लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे इकट्ठा होने वाले, गैदर होने वाले, एंड कंस्टिट्यूट कलेक्टर करंट आईसी। तो इस तरीके से ये सारे इकट्ठा होंगे और ये इकट्ठा होकर बैटरी से इधर पे कनेक्ट होंगे, तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे होगा, तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा करंट कंस्टिट्यूट होगा, कलेक्टर करंट कंस्टिट्यूट होगा। इन दिस वे द कलेक्टर करंट इज गोइंग टू बी कंस्टिट्यूट। दस द टोटल करंट फ्लो इन एन टाइप, एनपीएन टाइप, तो पूरा करंट का जो फ्लो है ये एनपीएन टाइप में है, वो आपको किस तरीके से मिल रहा है, आई जो है वो बढ़ रहा है आपका आई बी प्लस आई सी में। तो जो आपका इमीटर करंट है वो आपका बढ़ रहा है किसमें किसमें, बेस करंट और कलेक्टर करंट में। तो आई जो यहाँ से कंस्टिट्यूट हुआ वो बटा आपका आई बी और आई सी में, 2% ऑफ ओनली आई बी एंड रिमेनिंग 98% ऑफ आई सी। तो इसके लिए अगर आई बी को आप निग्लेक्ट भी कर दो तो आप बोल सकते हो कि आई इज इक्वल टू क्या होता है, आई सी होता है। नाउ दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हाँ, जो हम लोग ने जैसा सिंबल देखे थे अपने डायोड का सिंबल बहुत आसान था। नाउ सिंबल ऑफ एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। तो ये सिंबल ऑफ एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर देखो क्या है सिंबल में आपके, ये बीच में आपका बेस है, फिर यहाँ पे ऊपर की तरफ एक टर्मिनल है, नीचे की तरफ एक टर्मिनल है। तो एनपीएन टाइप में क्या होता है और पीएनपी टाइप में क्या होता है, ये थोड़ा फर्क जानना आपको ज़रूरी है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ ट्रांजिस्टर व्हेन इन द इमीटर टर्मिनल, जो नीचे की तरफ जो है वो कौन सी टर्मिनल बताई गई है, इमीटर, बीच वाली बेस, और ऊपर की तरफ कौन सी टर्मिनल है, कलेक्टर। तो ये जो इमीटर, जो इनपुट की तरफ जो टर्मिनल होती है वो नीचे की तरफ दिखाया हुआ है, इनपुट वाला हमेशा यहाँ पे आपको नीचे की तरफ दिखाता है इमीटर टर्मिनल, बीच वाला बेस आपको दिखाएगा, और ऊपर की तरफ जो है वो आउटपुट वाला टर्मिनल, दैट इज कलेक्टर टर्मिनल। तो इमीटर टर्मिनल में ना एरो मार्क की पोजीशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनपीएन टाइप में क्या होता है, दिस एरो मार्क इज आउटसाइड। आउटसाइड मतलब यहाँ से इमीटर करंट फ्लो हो रहा है, इमीटर टर्मिनल से आपका ये करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है, अवे अवे जा रहा है। तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो ये इमीटर टर्मिनल से अवे हो रहा है करंट। तो ये एरो मार्क जो आपको इधर पे दिख रहा है, तो दिस एरो मार्क इज इंडिकेटिंग द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन और पीएनपी में फर्क जानने का सिर्फ ये एरो मार्क के थ्रू है। तो दिस एरो मार्क इज इंडिकेटिंग द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ इमीटर करंट। तो इन एनपीएन टाइप द करंट इज फ्लोइंग अवे फ्रॉम द इमीटर टर्मिनल से अवे में आपका करंट फ्लो हो रहा है। तो ये टाइप कौन सा है आपका, एनपीएन टाइप। तो आपको पहचानने में कैसे समझ में आएगा कि ये मेरा ट्रांजिस्टर एनपीएन टाइप का है कि पीएनपी टाइप का है। तो ऑलवेज इन एनपीएन टाइप द फ्लो ऑफ करंट विल अवे फ्रॉम द इमीटर टर्मिनल, और जब पीएनपी की बात होगी ना तो वो आपको इधर इनसाइड दिखाई देगा। तो इनसाइड जब रहेगा, इमीटर करंट के इनसाइड में, इमीटर टर्मिनल के इनसाइड में जो करंट फ्लो होगा तो वो आपका बनेगा पीएनपी टाइप, और जो आवे की तरफ जो दिखाई देगा इस तरीके से वो आपका बनेगा एनपीएन टाइप। तो ऊपर वाला कलेक्टर टर्मिनल है, बीच वाला बेस है, नीचे वाला इमीटर टर्मिनल है, और इमीटर टर्मिनल में एरो मार्क होता है। इफ द एरो मार्क इज आउटसाइड देन इट इज एनपीएन टाइप, इफ द एरो मार्क इज इनसाइड देन इट इज पीएनपी टाइप। तो इन दिस वे यू हैव टू आइडेंटिफाई द सिंबल ऑफ द टाइप ऑफ ट्रांजिस्टर। तो ये ऊपर एन टाइप का सेमीकंडक्टर है कलेक्टर की तरफ, बीच में पी टाइप के सेमीकंडक्टर है बेस की तरफ, और नीचे इमीटर की तरफ आपका एन टाइप का सेमीकंडक्टर है। तो ये एनपीएन टाइप का सिंबल है, ट्रांजिस्टर का एनपीएन टाइप का सिंबल है। ये एरो मार्क से आपको डिफरेंस मालूम पड़ेगा कि ये पीएनपी टाइप का है कि एनपीएन टाइप का है। तो ऑलवेज रिमेंबर इन एनपीएन टाइप दिस एरो मार्क विल बी पॉइंटिंग टुवर्ड्स आउटसाइड, और पीएनपी में दिस एरो मार्क विल ऑलवेज पॉइंटिंग टुवर्ड्स इनसाइड द टर्मिनल। इस पर्टिकुलर ट्रांजिस्टर की आप इक्विवेलेंट किस तरीके से बता सकते हो, अगर इक्विवेलेंट बताना हो, ये इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, जैसा कि मैंने बताया कि ये पर्टिकुलर कितने जंक्शन का है, 2 जंक्शन का है, 2 पीएन जंक्शन है, 2 पीएन जंक्शन डायोड नजर आएंगे। तो बैक टू बैक 2 पीएन जंक्शन डायोड इस तरीके से कनेक्ट करके आप इसको ट्रांजिस्टर फॉर्म करते हो। पहला वाला देख लो आप किस तरीके से। तो पहला वाला देखो, ये पीएन जंक्शन मतलब डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ सिंबल कैसा रहेगा, ये पी टाइप या एन टाइप। तो इसलिए इसका जो डायग्राम में आपको शो किया है ये पी टाइप या एन टाइप। तो ये एक हो गया आपका, और दूसरी तरफ जो कनेक्ट किया हुआ है यहाँ पे आपका इस तरीके से जो नॉर्मल पीएन जंक्शन बोलते हैं हम लोग, तो इसके बाजू में कंटिन्यूशन में ये आपका नॉर्मल पीएन जंक्शन, और बीच में आपका एक जॉइंट करके जो आपका निकल रहा है बेस। तो ये आपकी इक्विवेलेंट सर्किट है एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर की। तो विद द हेल्प ऑफ दिस डायोड यू आर एबल टू ड्रॉ द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। तो यहाँ से जो टर्मिनल निकल रहा है उसको बोल दिया इमीटर, यहाँ से जो टर्मिनल निकल रहा है उसको बेस, यहाँ से जो टर्मिनल निकल रहा है उसको बोल दिया कलेक्टर। तो
तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपकी एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर की, बैक टू बैक टू पीएन जंक्शन डायोड, बैक टू बैक टू पीएन जंक्शन डायोड बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में बैक टू बैक पीएन जंक्शन डायोड को कनेक्ट करो तो दिस विल फॉर्म यू गिव यू एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर। समझ में आया आप लोगों को? आई होप आप लोगों को समझ में आएगा। बहुत ज्यादा कंटेंट समझा Yes, दिया मैंने sir. आज, सॉरी, बहुत ज्यादा ही कुछ समझा दिया आप लोग को, सॉरी फॉर माय एक्सप्लेनेशन बिहेवियर, बट आई होप आप लोग को समझाने की कोशिश किया रहूँगा, अच्छा पहुँचाने की कोशिश किया रहूँगा। किसी को कुछ डाउट है, कुछ पूछना है क्या अभी यहाँ पे? अगर कुछ नहीं समझ में आया है तो वर्किंग में अगर कुछ डाउट है, कुछ प्रॉब्लम है तो पूछ सकता है। मैंने सर आज टॉपिक इमीटर पे करंट खत्म किया किधर हूँ जाता है आपका सर? एनपीएन टाइप ट्रांजिस्टर का पूरा वर्किंग। हेलो एमिटर टर्मिनल विल इन एनपीएन टाइप, दो टाइप है ना, एनपीएन टाइप और पीएनपी ना। तो एनपीएन टाइप में एमिटर करंट जो है ना, वो एमिटर करंट टर्मिनल, एमिटर टर्मिनल के अवे फ्लो होगा, एमिटर टर्मिनल के अवे। ये जो इमीटर टर्मिनल है दिख रहा है आपको, तो इमीटर टर्मिनल के बाहर करंट जाता हुआ दिखाई देगा, तो वो एनपीएन टाइप में होता है। पीएनपी में उल्टा हो जाएगा, पीएनपी में इनसाइड की तरफ दिखेगा, पूरा करंट का फ्लो अलग हो जाएगा। ये दिख रहा है ना आपको कंस्ट्रक्शन वर्किंग? तो ये जो इमीटर टर्मिनल sir. की बाहर की तरफ जो करंट जाता हुआ दिख रहा है, ये डायरेक्शन है आपका। बाकी सब इनसाइड दिख रहा है आपको, कलेक्टर इनसाइड की तरफ दिख रहा है। बाहर मतलब बैटरी के पास से आएंगे ना? हाँ हाँ, बैटरी के पास, वो जाहिर सी बात है, देखो ये बैटरी की पोलैरिटी देख के ही हाँ समझ में आ जाना चाहिए आपको। जैसा बैटरी का पोलैरिटी है वैसे ही तो डायरेक्शन में जाएगा आपका करंट का फ्लो। अब यहाँ पे नेगेटिव है तो जाहिर सी बात है करंट इधर पे अट्रैक्ट होने वाला है, पॉजिटिव से वहां पे करंट इमिट होता है, निकलता है, जाता है। तो जैसा बैटरी का पोलैरिटी है वही डायरेक्शन में तो करंट फ्लो होगा, पॉजिटिव टू नेगेटिव करंट फ्लो होता है, तो वैसे ही होता है। ठीक है, ओके सर। तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको? सिंबल क्लियर है इसका, एनपीएन टाइप का? यस सर। इसका Yes. इक्विवेलेंट सर्किट भी क्लियर है, दो डायोड बैक टू बैक ऐसा फॉर्म करके आप बनाते हो इसको। ठीक है, तो आपके पास ट्रांजिस्टर नहीं भी होगा ना, तो आप दो डायोड को इस तरीके से कंबाइन करके बना सकते हो, बन जाएगा आपका ट्रांजिस्टर। तो ये इक्विवेलेंट सर्किट है आपके ट्रांजिस्टर की। सो आई होप दैट्स ऑल फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू फॉर ज्वाइनिंग, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग। Sir, I share. क्या हुआ, कोई कुछ पूछ रहा है क्या? Uh, कुछ डाउट है? नहीं सर, पूछ नहीं रही हूँ। मेरे पास ट्रांजिस्टर्स है दो, इफ यू अलाउ मी टू शेयर। हाँ, आपके पास ट्रांजिस्टर है, वो फ्लैट जो रहता है ना, 3 टर्मिनल दिखेगा, फ्लैट रहेगा आपका। यस सर, EC 547। DC 547, वेरी गुड। हाँ, वो बहुत यूज होता है एम्पलीफिकेशन के लिए, हाँ। प्रोजेक्ट्स वगैरह में ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, आपको मालूम पड़ेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। यस, वेरी गुड, बराबर है। एक BC 547 है और एक BC 557 है। हाँ, तो BC 547 NPN टाइप है, BC 557 आपका PNP टाइप का होगा। ठीक है, यस सर। जो NPN टाइप PNP टाइप है ना, तो BC 547 इज ऑफ NPN टाइप और BC 557 आपका PNP टाइप। यस। वेरी गुड, अच्छा है, रखियो आप, प्रोजेक्ट वगैरह में सब बनता है, यूज होता है प्रोजेक्ट वगैरह में काम करने में, प्रोजेक्ट का बेस है। थैंक यू सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। ठीक है, मैंने अटेंडेंस ले चुका हूँ, ऑल ऑफ यू कैन लीव। अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकता है। आप लोग देख लो, दिखा रही हो आयदा आपको पिक्चर में, इमेज में दिखा रही हो किस तरीके से ट्रांजिस्टर होता है। ठीक है, ओके, थैंक यू।